Good morning, student. Now tell me, what is the second function of management? Organizing. Very good. Now, why organizing is needed in any organization? For achievement of goal, for establishment of reporting relationship, avoiding duplication of work. Yes, you are right. Now, today I shall discuss about the importance of organizing. Before discussion, I would like to tell about the learning objectives of this topic. After studying this topic, the student will be able to understand the importance of organizing. My dear student, watch this video till the end and do not forget to like it. Now, what are the importance of organizing? First importance is benefit of division of work and specialization. Second, clarity in working relationship. Third, optimum utilization of resources. Fourth, adaptation to change. Fifth, effective administration. Sixth, development of personnel. Seventh, expansion and growth. Now I shall discuss all these importance one by one. First importance is benefit of division of work and specialization. Organization makes clear division of work. Every job is assigned to the right person. The scientific analysis and classification of job results in a specialization aids related advantage. You know that पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बिगर वर्क को स्मॉल पीस ऑफ वर्क में डिवाइड करते हैं एंड इस स्मॉल पीस ऑफ वर्क को असाइन करते हैं उस व्यक्ति को जिसके अंदर उस तरह की क्षमता और स्किल हो। इससे हमको क्या होगा, अगर उस फील्ड में स्पेशलाइज है तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग हेल्पिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग। Second importance is clarity in working relationship. A good organizing structure honors the principle of unity of command, which specify who is to report to whom. It helps in creating a hierarchical order and thereby enabling the fixation of responsibility and a specification of the extent of authority to be exercised by an individual. सेकेंड इम्पोर्टेंस में क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इसमें जो है वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर रहता है। इसमें पता रहता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दिन भर का जो काम किया है, जो भी आउटपुट उसका जनरेट हुआ मिला है, उसका रिपोर्ट किसको करना है, ये क्लियर रहता है कौन किसको रिपोर्ट करना है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब
A group of worker must receive command from only one superior or boss, उसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। एक ग्रुप ऑफ वर्कर जो है केवल एक ही सुपेरियर से और एक ही बॉस से कमांड रिसीव करेंगे ताकि किसी के माइंड्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे क्या होगा, दिन भर के अंत में कौन किसको रिपोर्ट करना है ये क्लियर रहता है। थर्ड, optimum utilization of resources. Organizing leads to the proper usage of all materials, financial and human resources. The proper assignment of jobs avoids overlapping of work and also makes possible the best use of resources. Avoidance of duplication of work helps in preventing confusion and minimizing the wastage of resources and efforts. इसमें जो है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होता है, जिससे क्या कोई भी वर्क होता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा और प्रॉफिट हाई होगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे एक फ़ोटोकॉपी, कोई डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी करवाना है, तो अगर राम को दिए हैं फ़ोटोकॉपी करवाने की तो राम ही करेगा, क्योंकि उसको ड्यूटी असाइन हो गया, जॉब असाइन हो गया। इससे ओवरलैपिंग अगर राम और श्याम दोनों फ़ोटोकॉपी नहीं करवाएंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा तो लो कॉस्ट होगा और हाई प्रॉफिट होगा। Fourth importance is properly designed organization structure is flexible. It can be modified according to the change in the business environment. इसमें जो है एडेप्शन टू चेंज, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन के आधार पर हो सकता है, प्रोडक्ट के आधार पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट के आधार पर कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन किए, जैसे गारमेंट एक डिवीज़न है, एक मेडिसिन डिवीज़न है, एक फुटवेयर डिवीज़न है। उसी तरह आगे चलकर कोई मान लीजिए कॉस्मेटिक डिवीज़न लॉन्च करना चाहते हैं तो एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देंगे। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरा जारी रहेगा और पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो एडेप्ट कर लेगा न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। इसीलिए कहा जाता है एडेप्टिव चेंज। या कोई भी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज लाना है, उसको आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है इफ़ देयर इज वेल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Organizing helps in effective administration by providing a clear description of jobs and related duties. This helps to avoid confusion and duplication. Management of an enterprise thereby becomes easy and it brings effectiveness in administration. Organizing से मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस आता है। मैनेजर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हैंडल द ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें जो है एवरीथिंग इज क्लियर, कौन ड्यूटी किसको असाइन किया गया है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता। इसलिए मैनेजर को पीपल को हैंडल करने में या मैनेज करने में आसानी होता है। मैनेजर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज एवरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। नाउ सिक्स्थ इम्पोर्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल।
Organizing helps in development of personnel by delegation of work to subordinates. Effective delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates. It also provides opportunity to the subordinates to utilize their talents. ऑर्गेनाइजिंग में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है बहुत सारे काम मैनेजर करते हैं और जो अपना रूटीन वर्क होता है अपने जूनियर और सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देते हैं। जूनियर सबऑर्डिनेट जो है उस वर्क को अपने बुद्धि विवेक से और डिसीजन लेकर खुद काम करता है, इसलिए उसके अंदर डिसीजन लेने का क्षमता होती है, डिसीजन लेने की क्षमता का विकास होता है और कोई भी प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है, कैसे सोल्व करना है, ये सब उसको नॉलेज मिलता है अगर कोई भी मैनेजर जो है सबऑर्डिनेट को अपना अथॉरिटी डेलीगेट करता है। इस तरह से जो जूनियर लेवल का जो मैनेजर है उनका पर्सनालिटी डेवलप होता है, मैनेजरियल स्किल डेवलप होता है और वो लोग सेटिस्फाइड भी होते हैं कि मैनेजर हम पर, जो सीनियर मैनेजर हम पर ट्रस्ट कर रहा है। Now last importance is expansion and growth. Organizing provides the framework within which an enterprise can expand and grow. Through organization, management can multiply its strength. It is through a sound organization structure that many small firms have grown and become big. Organizing जो है expansion and growth में help करता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो अपने के द्वारा स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और अपने स्ट्रक्चर को स्मॉल स्ट्रक्चर से लार्ज स्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करता है ऑर्गेनाइजिंग। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन रिलायंस जो है 7 साल में अपना सेल्स जो है डबल कर लिया रिलायंस जियो। Now at last I shall ask some question. Tell 3 importance of organizing. Yes, good. Now explain the meaning of expansion and growth, the importance, expansion and growth of the organizing function. Thank you.